हर बड़ी कहानी एक विजन से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश जो पहले अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपरा के लिए जाना जाता था, आज एक नई पहचान बना रहा है, भारत का ग्रोथ इंजन बनकर। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं था, बल्कि एक मंच था, जहां एम्बिशन ने अपॉर्चुनिटी से हाथ मिलाया, जहां ट्रेडिशन ने इनोवेशन को गले लगाया और जहां दुनिया ने उत्तर प्रदेश को एक्सपीरियंस किया। 25 सितंबर को UPITS इवेंट का इनॉग्रेशन PM मोदी जी ने किया। चलिए सुनते हैं उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की क्रांति आई है और आज ये देश का सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला प्रदेश बन चुका है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ यूपी ने हेरिटेज टूरिज्म में भी नंबर 1 स्थान हासिल किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने जिलों के अनेक उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाया है। मैन्युफैक्चरिंग में यूपी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी यूपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूपी में निवेश करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं बनाइए, और इसमें यूपी सरकार और भारत सरकार का सबको पूरा सहयोग मिलेगा। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया। इस ट्रेड शो की खासियत यह थी कि इसमें उत्तर प्रदेश के सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी भागीदारी दी। यहाँ 2400 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स इकट्ठा हुए अपने यूनिक प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस को शोकेस करने के लिए। एग्रीकल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, टेक्सटाइल से लेकर टूरिज्म तक, हर सेक्टर की कहानी यहाँ जिंदा थी। सबसे बड़ा हाईलाइट था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी एक अनोखी पहचान लेकर आया, जैसे वाराणसी का सिल्क, मुरादाबाद का ब्रासवेयर या भदोही के कारपेट्स। ये इनिशिएटिव न सिर्फ परंपरा को सम्मान देता है, बल्कि उसे ग्लोबल बाजार तक पहुंचाता है। तो चलिए अब एग्जिबिटर्स की जुबानी सुनते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उनके नजरिए से ये इवेंट का अनुभव कैसा था। I am a retiree from WHO. Oh, you're a retiree from WHO? Yes. Wow. I am 73-year-old and I started after retirement this work of pine. It was just a kind of by accident I came to know that there is a lot of potential in pine wood through which I can filter light. Could you please repeat that? I didn't get it. You see, shall I tell you a story? Yes, definitely. So when my daughter, was getting married, she said, "I want all pine wood furniture." So I made furniture for her, Okay. and out of the pieces left, I made a lamp. Then when I energized it, I saw the light filtering through wood. Okay. Then I got the lead. Okay. So I thought I should take it forward. So this is what you see. I am filtering light through wood. So, like when it comes to art pieces, like states like Gujarat, Maharashtra have been known to really push business in the past states. Why did you choose to come to UP for business presentation? No, I am actually based in Noida only for the past 40 years. Do you feel safe as a business owner in Noida? Yes, it is very quite safe. Is it like that now, or the things have changed? Actually, after this government, I think the things have changed. And this platform which they have given us, it is really wonderful. What platform exactly? This UPITS. Earlier, I have exhibited in the EPCH forum. I am a member of EPCH. If you had a line to say about UPITS or UP as a state itself, because you are a resident as well. Yes, I'm very. Could you tell me what your experience living and doing business in UP has been like? Experience in working here is quite satisfactory. I'm getting all my I have a setup in Noida, Sector 7, factory setup, and I'm getting all facilities for my to run the factory. When it comes to red tapeism licensing, has the government become easier to deal with or tougher? Yes, all things are being done in a very
Online? Is online. And Everything was online. yes, yes. So is it a good move or something that makes you tougher for your generation? No, it is facilitating. It has we are get rid of red tapeism and tedious methods going to the people, searching them and paying them extra money. So we are quite happy with the government's functioning. Hello sir, what's your name? I'm Paolo Zanni. I'm from Milan, from Italy. You're from Italy. Yes. Can I know what your experience here at UP ITS is? Well, it's the first time I come to this fair, even though we are regularly visiting India and working in UP, because we have many suppliers, especially for carpet. UP? UP. Normally, when people talk about foreign business, people think about Mumbai or Chennai or maybe some other state. Why UP? Because we are into carpets and textiles, and one of the carpet capital is Varanasi and Baduy. So that's why I'm regularly visiting. And Have you visited Baduy? oh yeah, many times. So, how's your experience here as a businessman? Very good, very good. I found different kind of products, categories, services which I didn't know before. So it's a very good source of contact and potential new business. I think you have been doing business, so you might have tried the food here. Right. What do you prefer, Italian food or Indian? When I'm in India, Indian. When I'm in Italy, Italian only. तो टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी चल रही है यूपी के अंदर? यूपी का टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है। हमारे पास जो डेस्टिनेशन बढ़ रहे हैं, अयोध्या प्रमोट हो गया, अभी हमने अपना कुंभ का मेला किया है, वो काफ़ी प्रमोट हो रहा है, और जो हमारे रीजनल्स है वो भी प्रमोट हो रहे हैं। यूपी टूरिज्म अब खाली आगरा नहीं, आगरा के साथ हम पटेश्वर भी प्रमोट हो रहा है, पटेश्वर भी चल रहा है, अब अयोध्या भी चल रहा है, चित्रकूट भी चल रहा है, और बनारस और जो प्रयागराज है वो सब भी प्रमोट हो रहा है। यूपी टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे लोकल टूरिज्म जैसे हस्तिनापुर है, आपके जो सुक्करताल है, गढ़मुक्तेश्वर है, वो सब भी लोग आना जाना वहाँ पे खूब कर रहे हैं। और रिलीजियस के साथ साथ एक कल्चर टूरिज्म के लिए इज द राइट प्लेस फॉर द यूपी टूरिज्म। तो जैसे आपने यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। क्या बात कर दिया आपने। बहुत ही बढ़िया। मेरा लास्ट सवाल ये था कि जैसे उत्तर प्रदेश की एक इमेज रही है ओवर द पास्ट ईयर्स, तो अभी हालात कैसे हैं? क्या टूरिस्ट आते हैं, उनको सिक्योरिटी इश्यूज या थेफ्ट इश्यूज रहते हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, सब लोग पॉजिटिव है। कब से चल रहा है ऐसा? 2000 जब से योगी महाराज जी आए हैं तब से ये अच्छा मूवमेंट है, 2017 से, और टूरिज्म प्रमोशन उसमें खूब सारा हो रहा है, और इसे देखते देखते हमारा टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, और हमारे पास इनबाउंड भी खूब है, डोमेस्टिक भी काफी बढ़ रहा है। ऐसा क्या हुआ? पहले भी तो सरकारें चल रही थी, आपने योगी जी का नाम लिया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ऐसा क्या हुआ है जो कि टूरिज्म बूस्ट हो रहा है? टूरिज्म बोर्ड अभी सब चीजें प्रमोट कर रहा है, जितने बड़े इवेंट हो रहे हैं वहाँ पे प्रमोशन चल रहा है, और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है। हाँ जी, कि जैसे आपने योगी जी को मेंशन किया, तो योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या पॉलिसीज रही हैं कि नाउ अब जो है लोग यूपी की तरफ टूर करने का प्लान बनाए, या फिर लोग टूरिज्म के लिए यूपी को भी एक नज़र से देखें? सबसे बड़ा यूपी में आज सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो हमारे पास है हाईवेज है, वो हमारे पास है बड़े बड़े। पहले आगरा था, लखनऊ तक था, अब वो गोरखपुर तक जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बनने लग रहा है, और बड़े यूपी में आज सबसे ज़्यादा हाईवे का स्टेट्स है। तो जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, दैट इज़ द कन्फर्म। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। प्लेजर, आप लोग आए और आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 2 लाइन फ्रॉम यूपी टूरिज्म टू आवर व्यूअर्स। आपने अगर आप कृष्णा में विश्वास करते हो तो उत्तर प्रदेश है, अगर आप राम में विश्वास करते हो तो उत्तर प्रदेश है, आप भोलेनाथ में विश्वास करते हो तो उत्तर प्रदेश है। सारी धार्मिक जगह हमारे पास है, कल्चर हमारे पास है। 1857 की लड़ाई उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के पास वो सब चीज़ें, हिस्टोरिकल प्लेस है, हेरिटेज, हमारे पास एक धरोहर है जो हमें संभालना है, और हमारी जनरेशन के उसके ऊपर जिम्मेदारी है। चाहे आप हिस्टोरिकल जब आप इतिहास पलटोगे आपको उसमें उत्तर प्रदेश नजर आएगा। अच्छा, कहाँ देखते हैं आप यूपी को एक नागरिक के तौर पर अगले 7 साल में? मैं मानता हूं कि यूपी धीरे धीरे बहुत ग्रोथ कर रहा है, और मैं पिछले डिपार्टमेंट की बात करूं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की संभावना है, क्योंकि नई नई टेक्निक आ गई है, और उसका अगर यूज करेंगे किसान लोग तो मैं जानता हूं कि उनकी आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। My name is Timofey Merdunov. I am the founder and CEO of Tech Team Engineering Company, which specializes on water separation
oil transportation and oil refining solutions. We are here in this great country called Bharat. We are looking for partners here. Now we are inspired that Indians have such a great leader as Mr. Modi, and we do believe that your country will become greater and greater in the nearest future. इस ट्रेड शो में 1,25,000 से ज़्यादा बायर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों शामिल थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिसंस, इनोवेटर्स और बिजनेस लीडर्स एक साथ आए और सबने मिलकर दिखाया कि उत्तर प्रदेश फ्यूचर के लिए सिर्फ तैयार नहीं है, बल्कि फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। अब चलिए ज़रा सुनते हैं उन लोगों की आवाज़ जो इस ट्रेड शो को ग्राउंड लेवल पर महसूस कर रहे थे। बायर्स, विजिटर्स और कुछ क्रिएटिव परफॉर्मर्स। हर एक की अपनी कहानी है, अपना नज़रिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हर स्टॉल देखा, हर इनोवेशन को महसूस किया और इस इवेंट के जज्बे को अपनी आंखों से समझा। उनके शब्दों से हम समझ सकते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सिर्फ एग्जीबिशन नहीं था, बल्कि एक अनुभव था जहां आइडियाज़ मिले, कनेक्शंस बने और हर किसी के लिए नए मौके खुले। My name is Jihad Salame. I'm from Jordan. You're from? Jordan. You're from Jordan. Yeah. Okay, so can I know about how your experience here as an international buyer in UP ITS and UP as a state, how your experience has been over the past 5 days? I think it's very good. It needs a little bit of more organization, putting more sections together of the same brand, but all in all, it's fantastic, great efforts, and it's a good opportunity for buyers and manufacturers to meet and make business relations. Why did you choose to come to this fair in India? This is my first time, honestly. I usually go to fairs in China, Europe, but to India, this is my first time coming into a fair. Why do you give it a thought to come to India for a fair? I want to know more about Indian products, Indian manufacturers, and probably establish a better relations with the Indian manufacturers. Can I know the reason, if you don't mind? Come again? Can I know the reason for what you just said? The reason is, at the end of the day, competitiveness. I'm looking for new markets, better prices, better quality, value for money. So India does give you an ease of business. What I've seen, yes, I think manufacturers are very understanding and prices are very affordable. They do compete, yeah. विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होके जाता है। आज उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद से अपने हाथ के उत्पाद लेकर के इतना सुंदर मेला आया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री के हाथों जिसका उद्घाटन हुआ है। एक समय ग्रेटर नोएडा लोग आने से डरते थे, निर्माण तो हो गया था लेकिन लोग बसे नहीं थे आकर। आज बतौर कलाकार मैं यहाँ पर आई हूँ और आपको मैं बता नहीं सकती जिस प्रकार के यहाँ भीड़ है, जैसा उत्साह है, जैसी खरीदारी के लिए एक उत्साह है। वैसे भी नवरात्र है, सरकार ने वैसे जीएसटी की दरें कम कर दी, आप सब भी आए और उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड कॉन्क्लेव का लाभ उठाएं। मैं हृदय से कामना करती हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी शतायु हूँ और क्योंकि उन्होंने पूर्वांचल के उस कोने से उत्तर प्रदेश को देखा है, पिछड़ापन क्या होता है ये भी देखा है, योजनाएं दूरस्थ गांवों में कैसे नहीं पहुंच पाती ये भी देखा है। शायद यही कारण है कि विगत 8-9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सब चीजों में अपने आप को
लाभार्थी की जगह रख करके देखा, कैसे योजनाओं का लाभ मिले। मैं सिर्फ यही मनाती हूँ वे शतायु हों, सदैव स्वस्थ रहें। नवरात्र चल रहे, माँ भवानी सदैव शक्ति से उनको संवर्धित करती रहें। न सिर्फ कला, न सिर्फ साहित्य, न सिर्फ हमारी संस्कृति, अपितु हमारी उद्योग धंधे सबकी चौमुखी प्रगति। सो हाय श्लोक, तो अभी आप कौन से स्कूल से हो और अभी आपने कितने स्टॉल विजिट कर लिए हैं और यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, और यहाँ पर जितने गेम्स खेले आपने कितने? मैंने अभी यहाँ पे आए हुए थोड़ी देर हुई है। मैंने यहाँ पे सारे गेम खेल चुका, जो चारों के चारों हैं। चारों में बहुत मजा आया। ये स्वच्छता अभियान को लेके ये गेम था, तो उससे लेके बहुत मजा आया। एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा था। तो बाकी ये बताइए आप श्लोक की, जैसे रिवर्स को क्लीन कैसे रखते हैं, बेसिकली अपना क्या कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं रिवर एज ए स्टूडेंट, आप क्या दूसरों को बताओगे अपनी क्लास में? और कोई रिवर में प्लास्टिक न गिरे, कोई गंदगी न मचाए उसके अंदर, सब अपना कचरा है वो डस्टबिन में फेंक डाले। भी अलग अलग डस्टबिन यूज करें, जैसे रेड, येलो, ब्लू, इन सब के लिए अलग अलग डस्टबिन है। वाटर के लिए अलग, ड्राई चीज के लिए अलग है, और बाकी उसके लिए अलग है। तो उस सारा अपना कचरा उसमें गिरे। अपना जो कचरा है वो कचरा सेपरेट करके सारी जो डस्टबिन डिसाइडेड है उसमें डाले और रिवर्स को क्लीन करें। नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा, कथक नृत्यांगना। मैंने आज एक्सपो मार्ट में अपनी परफॉर्मेंस वैष्णवी के राम के रूप में की है। सब हम लोग देवियां बन के वैष्णवी के रूप को बता रहे हैं, वैष्णवी के राम, कैसे वैष्णो देवी का वो हुआ, कैसे वो इंतज़ार कर रही है अभी। और इसके अलावा मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिससे योगी जी ने हमें पहले तो राम उत्सव में चांस दिया, अब यहाँ एक्सपो मार्ट में, और जगह जगह हमारे नृत्य और कलाकार उभर कर सामने आ रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी घोषित हो रहे हैं। तो उनको सबको, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत, मेरे सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस इवेंट के आखिरी दिन 29 सितंबर की शाम को जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उत्तर प्रदेश सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक इवेंट नहीं था, ये एक प्लेटफॉर्म था जहां आइडियाज और एम्बिशन एक साथ मिले, और जहां हर डिस्ट्रिक्ट, हर एग्जिबिटर, हर विजिटर ने मिलकर एक नई कहानी लिखी। 75 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट से लेकर ग्लोबल बायर्स तक, ओडीओपी से लेकर क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस तक, सबने मिलकर यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश सिर्फ ग्रोथ के लिए रेडी नहीं है बल्कि ग्रोथ का लीडर बन रहा है। और जैसे ही हम इस इवेंट से अलविदा लेते हैं, एक ही बात याद रहती है, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं था, ये एक नई कहानी का आरंभ था।